welcome back students. So today we will be carrying forward the chapter reproductive health, and these are the various topics that we will be discussing about. We already discussed about reproductive health and what's the need of talking about it in the previous video lecture. We talked a bit about the population, the sex ratio, the social awareness, need of social awareness for reproductive health, and today we will carry it forward with population. There are certain points that needs to be mentioned. So as I mentioned previously, that our nation, India, was the very first nation that started with family planning in the year 1951. Just after a few years of independence, the leaders were able to analyze that yes, population is going to be a big problem for the nation's development. So they took various steps, and one such step was they started with family planning programs in 1951. 1951 family planning program. Okay, it was renamed after a few years and was named as reproduction and child healthcare program in the year 1977. Okay, now what were the various things that were the main points of focus in this planning program, family planning program? Well, it included various issues and refers to the practice that have been, various things like providing knowledge regarding reproductive health, providing knowledge regarding reproductive health. Okay, then providing knowledge of pre and postnatal care of a mother or pregnant lady. ठीक, उसके बाद it creates awareness among the adolescents and the fertile couples, mature couples regarding contraceptives. Okay, under this program our Indian DRDO, our contraceptive named Saheli was developed by Medical Research Biological Research Center that is located in Kolkata. Okay, we will discuss it in this topic. Next, care of newborns was also a topic of coverage under this program. After this, what else? Providing knowledge regarding reproductive health, MTPs, how to get the pregnancy medically terminated, because it's not necessary that each pregnancy will be resulting into a baby. There are certain pregnancies which create danger to the life of the mother. Okay, after all these, the most required one, creating awareness regarding which stands for sexually transmitted infections or diseases. Okay, I hope this is clear. Now
अगर बेटा इन चीज़ों को हम आज की सिनेरियो में इमेजिन करें, मतलब अगर कंपेयर करके देखें तो हम देखेंगे कि जो आंगनवाड़ीज हैं, हर विलेज में आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। उसमें प्रेग्नेंट लेडी को, इफ यू टॉक अबाउट दिस, प्रेग्नेंट लेडी की वैक्सीनेशन, ठीक है, उसके फूडिंग और फीडिंग के लिए जो भी मतलब नेसेसरी न्यूट्रिशियस फूड जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाती है आंगनवाड़ी के थ्रू गवर्नमेंट, ठीक है। क्या क्या है, जैसे वैक्सीनेशन, आयरन, विटामिन tablets, folic acid was also included into it, ठीक है। Plus what else, nutritious food, for example milk powder, dry fruits, what else, grams, sugar, such kind of things are provided by government through Anganwadi outlets to different pregnant ladies, okay. And after the delivery, through these same Anganwadis, the complete vaccination and immunization of a newly born infant can be availed. आंगनवाड़ीज में नए बेबी को, जो नवजात शिशु होता है बेटा, उसके पैदा होने के बाद कॉन्टिन्यूसली आपको बुलाया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है डिजिटली, या फिर जो आपकी आंगनवाड़ी में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आया वर्कर्स हैं, वो कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर देती है, जो भी न्यूली मदर बनी होती हो उन्हें, कि आप अपने न्यूली बोर्न बेबी को लेके आइए, आज उसकी इम्यूनाइजेशन होनी है या आज उसकी वैक्सीनेशन होनी है, ठीक है। तो देखिए आंगनवाड़ी से मदर की केयर हो रही है, आंगनवाड़ी न्यूली बोर्न बेबी को वैक्सीनेशन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इसी वैक्सीनेशन को कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू करवाते हैं, देन इट विल चार्ज यू मनी फॉर द सेम, ओके। जहाँ एक तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको सेम चीज़ के लिए हेफ्टी मनी भी देना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके बाद देखो गवर्नमेंट ने और क्या शुरू किया है, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मातृत्व स्कीम इस तरह से करके एक स्कीम लॉन्च कर रखी है। उसके थ्रू क्या होता है, हर प्रेग्नेंट लेडी को टोटल प्रेगनेंसी से पहले प्लस उसकी प्रेगनेंसी के दौरान प्लस उसकी डिलीवरी के बाद के लिए टोटल 6,000 रुपीज दिए जाते हैं, यानी पर प्रेगनेंसी एक फीमेल को 6,000 रुपीज वो अवेल कर सकती है थ्रू द प्रधानमंत्री मातृत्व स्कीम। तो देखिए काफ़ी कुछ, अगर आपको ये चीज़ अवेयर ना करवा जाए, अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में ना होता तो क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती, नहीं मिलती, ठीक है। यही रीज़न है कि बेटा ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके इस तरह के चैप्टर्स के थ्रू। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। ये जो आंगनवाड़ीज हैं बेटा, जो मदर की प्री और पोस्ट नेटल केयर करते हैं, ये ना सिर्फ मदर के लिए काम करते हैं, बट इट ऑल्सो वर्क्स फॉर द न्यूली बॉर्न बेबीज। न्यूली बॉर्न बेबी के कंप्लीट इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन कैन बी अवेल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। वैक्सीनेशन through these आंगनवाड़ी outlets, okay। अब इससे आगे चलते हैं एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन टॉपिक के सर्टेन पॉइंट्स थे जो हमें हमारे कल रह गए थे, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जब बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो ये एक डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। These represents the year, okay।
and this is the world population. In year 1900, the population was 2 billion, whereas the same reached 6 billion in 2000, year 2000. You can see the drastic change. Okay, 100 years के अंदर the world population has increased to 6 billion. Okay. Similarly, if we observe the India's population, then in year 1947, means at the time of independence, we were 350 million individuals. Okay, and the same reached to 1 billion in the year 2000. Okay, now if we compare this data with the data that was presented before us by the counting that was done in census, population census in 2011. The last population count was done in year 2011. Then this population 6 billion reached to 7.2 billion, and in India the same reached to 1.2 billion in the year 2011. Okay, you can see that there is more than 2% growth rate. कितना है बेटा? Population growth rate कितना है? More than 2%. Okay, इसका मतलब क्या हो गया? What does it means? More than 2% means that there are 20 individuals on every 1000 individual being added per year. 20 newborns, people per 1000 individual added per year. ओके, अब सोचने वाली बात ये है कि पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ये डिक्रीज क्यों नहीं हो रही है बेटा? बड़ा कॉमन सा और बड़ा इजी, कॉमन सेंस लगाने में बड़ा इजी सा जवाब निकल के आता है कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में, हमारी मेडिकल प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी है कि हमने डेथ रेट को कम कर दिया है, डेथ रेट को डिक्रीज कर दिया है. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है. डेथ रेट में कौन कौन शामिल हुआ? मदर मोरालिटी रेट. मोरालिटी का मतलब क्या होता है बेटा? डेथ रेट, मोरालिटी. ठीक है, मदर की मोरालिटी रेट को डिक्रीज कर दिया. अदरवाइज पहले क्या होता था, बहुत सारी फीमेल्स तो डिलीवरी के दौरान ही एक्सपायर कर जाती थी, या आफ्टर डिलीवरी प्रॉपर केयर, पोस्टनेटल केयर अच्छी ना होने की वजह से वो जो है एक्सपायर कर जाती थी. दूसरी बात और क्या इंक्लूड होगा? डिक्रीज्ड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बोल सकते हैं इसको. डिलीवरी के टाइम पे प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजीज होने की वजह से, हमारे पास प्रॉपर वैक्सीनेशन होने की वजह से, हमने नवजात शिशु का जो मोरालिटी रेट था, मतलब कितने शिशु मर रहे थे पर 1000 बर्थ्स पे, वो भी डिक्रीज कर लिया है, क्योंकि अब इमीडिएट हमें फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं. इसके बाद हमने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर लिया है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोले तो प्रीवियसली कोई भी कॉमन सी बीमारी होती थी तो उसके चलते बहुत सारे इंडिविजुअल्स, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, वो गुजर जाते थे, वो एक्सपायर कर जाते थे. लेकिन अब क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम बीमारियों का इलाज है, तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिलने की वजह से, प्रॉपर मेडिसिन मिलने की वजह से, केयर मिलने की वजह से हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा चुके हैं. अर्लियर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज around 42 and now it is increased to 60 years. Fine. I hope this is clear. लेकिन बेटे अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही, या पॉपुलेशन का इतना मासिव स्केल पे इंक्रीज होना, इसको क्या बोलते हैं?
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कौन सी कंट्री है जिसमें हाईएस्ट नंबर है पॉपुलेशन का? इट इज चाइना। ओके, आप फाइंड आउट करके बताएंगे कि इंडिया लाइज ऑन, इंडियाज रैंक इन पॉपुलेशन इंडेक्स कितना है, प्लस इंडिया में कौन सी स्टेट है, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट या पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन को वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी के तौर पे मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स या पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स के बिहाफ पे पॉपुलेशन डेंसिटी में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर किया जाता है। जिस भी इंडियन स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और किस में लीस्ट है, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये 3 क्वेश्चन है आज के अभी के लिए। लेट्स सी अगर कोई और निकल के आता है, ठीक है। इनके आंसर्स आप मुझे या तो कमेंट्स में मेंशन करोगे या फिर ग्रुप पे मेंशन करोगे। इतना क्लियर हुआ? अब बात आती है कि बेटा ये तो प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हाउ कैन वी हैव कंट्रोल ओवर दिस एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन? तो इसका इलाज जो है, इसका क्योर जो है वो इसी टॉपिक के अंदर है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जिसको नॉलेज है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पता होगा, उसको ये पता होगा कि हाउ कैन अ पर्सन मैनेज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, और उसे ये भी मालूम होगा कि अगर फैमिली का साइज बड़ा है तो, या एक फैमिली के अंदर ज़्यादा किड्स हैं, दैट इज मोर नंबर ऑफ kids present in a family, then they become liable on the parent. Okay, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो लेबर क्लास होती है ना, उसमें ये थिंकिंग रखी जाती है, ये मेंटेलिटी होती है कि जितने बच्चे उतने ज़्यादा काम करने वाले, उतने हाथ और उतनी ही ज़्यादा आमदनी। ठीक है, लेबर क्लास में तो अगर एक छोटा बच्चा ईंटें भी ढो रहा है तो उसको भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं ये बड़ी डेंजरस है, ना सिर्फ उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए बल्कि कंप्लीट नेशन और वर्ल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती रही देन वी विल बी रेगुलरली कॉम्पिटिंग विद द फॉर द रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बेशक से अबंडेंट हैं बट दे आर ऑल्सो लिमिटेड एट अ पर्टिकुलर पीरियड, एट अ पर्टिकुलर टाइम। रिकवर हो जाते हैं, वो साइकिल चलती रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो लिमिट का है ना। तो मैं बता रही थी कि लेबर क्लास के बारे में, अगर उन बच्चों को आपने, अगर इतने ज़्यादा बच्चे होंगे एक फैमिली में, कमाने वाले तो माता पिता ही हैं, ठीक है, वो उन बच्चों को उतने अच्छी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? एजुकेशन नहीं होगी तो उन बच्चों में अवेयरनेस नहीं आएगी, वो लोग जहाँ हैं उसी लेवल पे अटके रह जाएंगे सोसाइटी में। ठीक है, प्लस न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स दे विल बी हाउस ऑफ डिजीज, उनके अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी जो दोबारा से जो है उनको एक लायबिलिटी बना देंगी समाज के ऊपर प्लस गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि बट जो भी टैक्स हम पे करते हैं वो कहाँ जाता है? पुअर और इस तरह की क्लासेस के ऊपर ही तो लगता है। एक मेजर शेयर जो हम लोग RTA टैक्स के तौर पे जो पे करते हैं वो जो पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ही तो इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम उन लोगों का, BPL वाले बंदों का, BPL नंबर ऑफ जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो येलो राशन कार्ड्स होते हैं, अगर उन लोगों का नंबर हम घटा देते हैं तो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो सरकार उस पैसे को कहीं और अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकती है, इजंट इट? ओके, इसीलिए अवेयरनेस होनी जरूरी है। क्या कोई पॉइंट छूट रहा है? आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू contraceptives. Contraceptives are those methods which help in avoiding pregnancies, and let's see what we have to talk about it.
सो बेटा जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? एनी मेथड दैट हेल्प्स इन preventing unwanted pregnancy. अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो भी मेथड आप इस्तेमाल करें वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव। अब बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? दीज कैन बी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और दीज कैन बी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो है टेम्परेरी दीज कैन बी ऑफ टू काइंड्स। contraceptives can be of two types. टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाने यानी प्रेगनेंसी को लिमिटेड टाइम के लिए अवॉइड करेंगे। एंड देन टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मीन्स वो ये मेथड अगर एक बार अडॉप्ट कर लिया तो आप निश्चिंत हो सकते हैं दैट देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। फाइन। इन दोनों पे जाने से पहले, इन दोनों कैटेगरीज पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा कॉन्ट्रासेप्शन आप कब करोगे? जब आपको ये पता होगा ना कि प्रेगनेंसी है तभी तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचोगे, तभी तो आप जो है प्रेगनेंसी के लिए अवेयर हो, तभी तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के और आपका रुझान होगा। सपोज इफ यू डोंट वांट अ प्रेगनेंसी, सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी का पता कैसे करेंगे? यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट। बहुत सारी अवेलेबल हैं, प्रेगर टेस्ट है, ठीक है, इस तरह से करके बहुत सारी टेस्ट किट्स अवेलेबल है मार्केट में। फार्मासिस्ट के पास, फार्मेसी की दुकान पे मिल जाती हैं, आपको शॉप पे मिल जाती हैं। और ये किस पे काम करती हैं? दे जनरली वर्क ऑन द लेवल्स ऑफ HCG प्रेजेंट इन योर यूरिन। यूरिन के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की अमाउंट के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। और हमने रिप्रोडक्शन वाले, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि HCG को सिक्रेट कौन करेगा? प्लेसेंटा। कौन करता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ऐसा हार्मोन है, ऐसा ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही अपीयर होता है। फाइन। तो प्रेगर किट्स के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं और फिर हम ये डिसाइड करते हैं whether we want to keep this pregnancy or not. If we want to keep that pregnancy, then we go for regular tests and medical checkups. But in case we are not interested in that pregnancy or we don't want it, then we opt for contraception. तो ये तो है प्रेगनेंसी के बाद के कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर प्रेगनेंसी से पहले कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं? तो बेटा उसमें मेन फोकस होता है कि फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करवाना है। We need to make sure, we need to ensure that sperm and ova do not meet. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेटा एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा, ज़ाइगोट फॉर्म नहीं होगा, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो बिफोर प्रेगनेंसी अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस फंडामेंटल पे काम करते हैं कि स्पर्म और ओवा को नहीं मिलने देना, ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। उस पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक गुड कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। एक गुड कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, इजी टू यूज़, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स हो गया, यूज़ करना ही नहीं आएगा तो इंसान के लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, कॉन्ट्रासेप्टिव होते हुए भी उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। देन इजीली अवेलेबल, है तो कॉस्ट एफिशिएंट। अगर महंगा होगा तो कौन इस्तेमाल करेगा? कोई भी नहीं, ठीक है। फिर नो साइड इफेक्ट्स और लीस्ट साइड इफेक्ट, नो या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट्स। देन डू नॉट हिंडर with natural
population, sorry, do not hinder with population. ठीक है, these are some qualities that we look for in a good contraceptive. Okay, अब आगे बात करते हैं डिटेल में टेम्परेरी और टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में. टेम्परेरी और टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल नेचुरल मेथड. द वेरी फर्स्ट टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज केमिकल मेथड. Chemical method, as the name suggests, it uses certain chemicals. These chemicals, for example, citric acid, lactic acid, boric acid, and what else? KMnO4. These all act as spermicidal agents. Spermicidal agents. Spermi यानी कि sperm, साइडल यानी कि killing, यानी कि ये केमिकल जो है बेटा स्पर्म को किल करने में हेल्प करते हैं. एंड दिस आर यूज्ड एज फॉर्म्स. ओके, स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स. और मेन इसका मैकेनिज्म क्या है वो समझना जरूरी है. ये केमिकल्स जो हैं वो अपने आप को स्पर्म की बॉडी पे अटैच कर लेते हैं, उसका स्पर्म का O2 इनटेक इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, अगर O2 अवेलेबल नहीं होगी स्पर्म सेल को तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिएक्शन हो पाएगी? नो. एनर्जी रिलीज हो पाएगी? नो. मोटिलिटी हो पाएगी? नो. हैंस इवेंचुअली द स्पर्म विल बी फ्यूटाइल. वो खराब हो जाएगा और जितनी देर में उसको ओवा तक पहुँच जाना चाहिए था वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो केमिकल मेथड में मेल्स के लिए स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के तौर पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. दिस कैन बी इधर अप्लाइड विद सम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. मेनली बैरियर मेथड के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स और फोम. ठीक है, और दोनों को अगर आप इकट्ठा मिला के यूज़ करते हैं, अगर आप दोनों को साइमल्टेनियसली टुगेदर यूज़ करते हैं तो चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर इंक्रीज्ड एंड चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर डिक्रीज्ड. ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो वजाइनल फॉर्म और टेबलेट्स के तौर पे वजाइनल फॉर्म या टेबलेट्स के तौर पे टेबलेट टुडे नाम से जो है मेडिकल शॉप्स पे जो है अवेलेबल होती है. एंड इफ वी टॉक अबाउट क्रीम्स एंड जेली, क्रीमी टेक्सचर या जेली की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, क्रीम या फिर जेली के तौर पे जब हम बात करते हैं, देन दीज आर अवेलेबल एज नीम 76. ये जो बेटा नीम 76 स्पर्मिसाइडल जेली है, क्रीम है, इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने इसको फॉर्मुलेट किया? डिपास. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी अलाइड साइंसेज एंड इट कम्स अंडर DRDO. DRDO के अंदर डिपास नाम से जो है एक इंस्टीट्यूट है, उसने निम 76 को फॉर्मुलेट किया है. ठीक है, क्या है ये स्पर्मिसाइडल क्रीम है एक तरह की. इसको फीमेल ट्रैक्ट में लगाया जाता है और जब भी स्पर्म एंटर करता है या सीमेन रिलीज किया जाता है फीमेल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो ये जो क्रीम है, जेली है, इसके केमिकल्स जिसमें केमिकल के तौर पे ये सब केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये स्पर्म की बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, O2 का इनटेक को इनहिबिट कर देते हैं, हैंस इवेंचुअली द स्पर्म डाइज. ओके, तो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं. नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड. बैरियर मेथड एज द नेम सजेस्ट कुछ फिजिकल बैरियर आपने लगा दिया है बीच में, तो ओवा और स्पर्म मीट नहीं कर पा रहे हैं. मेल्स में कॉन्डम फेमसली नोन, फीमेल्स में भी फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, डायफ्रागम्स, वॉल्ट्स, सर्विकल कैप्स. किससे बने होते हैं दोनों? इधर दे कैन बी मेड ऑफ लेटेक्स और रबर. या तो लेटेक्स के बने होंगे बेटा या तो रबर के बने होते हैं. ओके, यहाँ ध्यान देने वाली मेन बात क्या है
कि इनका एक पॉजिटिव जो है एट्रीब्यूट है क्या, कि जो बैरियर मेथड है वो आपको STDs से बचाता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उससे बचाता है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्डम्स हैं या जो फीमेल कॉन्डम्स हैं वो प्लास्टिक के तौर पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर सीमेन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर फ्लूइड दूसरे बंदे के बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स के कांटेक्ट में ही नहीं आया है तो कोई चांस ही नहीं है ट्रांसमिशन होने का। ओके, कॉन्डम की शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें चांस क्या है बेटा, ये टियर अप हो सकता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। फीमेल कॉन्डम्स की क्या शेप होती है, ये इधर से जो आपके सर्विक्स, वजाइना, ये सर्विकल ओपनिंग है, इस तरह से इंसर्ट कर दिया। तो बेटा यहाँ से जब पेन इंसर्ट होती है तो ये कवर्ड है, क्लोज्ड है इस तरफ, ठीक है, इसमें क्लोजिंग है और क्लोज होने की वजह से क्या होगा, जो भी लिक्विड है वो इसी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या यूट्रस में एंटर नहीं हो सकेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ये जो सर्विकल ओपनिंग है ना ये इससे बाहर रहती है, ठीक, ये ठीक है। ये सर्विकल कैप्स कैसे होती है, इस तरफ से बंद होगी, इधर से क्लोज होगी, इधर से ओपन होगी, तो जो भी फ्लूइड होगा वो इस कैप के अंदर, इसको ऐसी चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी फ्लूइड होगा वो इस कैप के अंदर जो है कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक क्या है सर्विकल कैप का, कि ये 100% अश्योरिटी नहीं देती है कि इससे की वजह से STI या STDs नहीं होंगे। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम है, इसको यहाँ प्लेस किया जाता है, यहाँ पे, यानी कि ये इस तरह से और इसके अंदर इस तरह से प्लेस की जाएगी, ठीक। तो लिक्विड इसके अंदर इकट्ठा होगा, लेकिन बेटा जो लिक्विड है, जो सीमेन है, वो यहाँ ये सरफेस जो है ये प्रोन है, ठीक है, ये उस लिक्विड से प्रोन है, सीमेन से प्रोन है, तो सीमेन अगर यहाँ टच करता है तो इधर इन्फेक्शन होने के चांसेस अगेन बढ़ जाते हैं, या मतलब 100% हो जाते हैं अगर कॉन्टेक्ट में आता है तो। सो बैरियर मेथड में एक फ़ायदा क्या है कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन तो प्रोवाइड करता ही है, प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू फ्रॉम STDs। व्हाट एल्स? इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि इसमें ये रबर और लेटेक्स के होने की वजह से टेयर अप होने के चांसेस होते हैं, हेंस द सीमेन कैन लीक इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और इवेंचुअली प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि बैरियर मेथड के साथ हमें अगर केमिकल मेथड को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हाई हो जाते हैं। अब देखो दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो उनको रबर और लेटेक्स जो है वो सूट नहीं करता है, तो इट कॉजेज इन्फेक्शन अमंग देम, इरिटेशन अमंग देम, और दोबारा से मतलब एक अनकम्फर्ट वाली कंडीशन उन लोगों के लिए क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और बैरियर मेथड है जिसको बोलते हैं IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसको बेटा मेजर बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है, ये डिवाइसेस में क्या होता है, डिवाइस आइडिया है, हम कोई अलॉय या स्टेनलेस स्टील या फिर एलिमेंट मेटल का बना हुआ एक वायर लाइक स्ट्रक्चर जो है फीमेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं यूट्रस में, और वो इवेंचुअली हेल्प करता है कॉन्ट्रासेप्शन में। अब ये कैसे होता है, कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी,
ये सब हम आने वाले आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे, प्लस वी विल बी डिस्कसिंग हार्मोनल मेथड एज वेल एज नेचुरल मेथड टू. ओके, फॉर टुडे दिस इज ऑल. थैंक यू.